Welcome everyone. आप सभी का हम स्वागत करते हैं। So today we are going to continue to the book of John chapter 6. और आज जो है हम यूहन्ना उसके 6वें अध्याय से आगे की ओर देखेंगे। Last time we have seen till the topic the bread of life. और पिछले समय में हमने देखा जो विषय इस जीवन की रोटी के विषय में, How that Jesus was telling that he is the bread of और life. किस प्रकार से यीशु बता रहा था कि वो जीवन की रोटी है, And they were thinking of physical bread. और वो जो है वो शारीरिक रोटी के विषय में सोच रहे थे। But today we are also going to continuing that thought. पर आज जो है हम उसी विचार को आगे की ओर We are लेकर going to जाएंगे। complete chapter 6. और आज जो है हम यूहन्ना उसके 6वें अध्याय So को we'll पूर्ण see करेंगे। today from 52 to 71. और आज जो है हम वचन 52 से लेकर 72 तक देखेंगे। And today's main the verse, the topic which I have displayed, thou hast the words of eternal life. और आज का जो विषय है और उसका जो शीर्षक है वो है कि तेरे ही पास अनंत जीवन के शब्द है। Thou hast the word of eternal life. तेरे ही पास वो अनंत जीवन के शब्द है। So if you turn with me to John chapter 6 and verse, where is that verse? Verse 64. आइए Sorry, मेरे साथ 63. आइए मेरे साथ खुलेगा यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 63वां वचन। Yeah. It is the spirit that quickeneth, and flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। What is Jesus saying? The words that I speak, और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो शब्द वो बोलते हैं, right? They are the spirit and they are life. और वो आत्मा है और वो जीवन है। And Peter understood this. और पतरस ने उस बात को समझा। And if you see verse 68, then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? And he said, Thou hast the words of eternal life. और शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। So before going to verse by verse, और वह एक एक वचन करके देखने के पहले we'll understand that John chapter 6 began with feeding of 5,000. और हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 6वां अध्याय जो है वो 5,000 को खिलाने And at की the end शुरुआत of होती है। this chapter 6, और जब ये 6वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, many disciples are walking away from Jesus. और बहुत से चेले हम देखते हैं कि वो यीशु से दूर होकर चले जाते हैं। Right? So the crowd wanted physical bread, और वो जो भीड़ थी वो शारीरिक रोटी चाहती थी, but Jesus was offering a spiritual bread, पर- a spiritual life, a bread of life. He himself was offering. पर यीशु जो है वहाँ पर वो आत्मिक रोटी और वो आत्मिक जीवन को वहाँ पर दे रहा था। The great issue throughout this chapter और जो ये पूरे जो अध्याय है इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? is not that they wanted the physical bread, और ये नहीं है कि वो शारीरिक रोटी को चाहते थे, but the main concern was believing on Jesus Christ. पर सबसे बड़ी जो बात थी वो थी कि यीशु पर विश्वास रखने की But बात। they were not believing Jesus Christ. वो यीशु पर विश्वास नहीं रख रहे थे। And today the verses we are going to see, और आज जो वचन हम देखने वाले हैं, these verses are greatly misunderstood among so-called Christians. और ये जो आज के जो वचन हम देखने वाले हैं वो बहुत से लोग जो है इसको समझ नहीं पाते हैं। Right? They think that by eating Jesus' body and Jesus' blood, you can have salvation. और वो इस प्रकार से सोचते हैं कि यीशु मसीह का मांस खाने से और यीशु मसीह का लहू पीने से उद्धार मिलता By taking part in Lord's Supper or Communion, you can get salvation. है, और प्रभु भोज में सहभागी होने से उद्धार मिलता है। That's why in verse 63, Jesus clearly means what to say. He said, "The flesh profiteth nothing." और इसीलिए वचन 63 में सीधे तौर पर यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि शरीर से कुछ लाभ नहीं, It is the spirit that quickeneth. और ये जो है ये आत्मा है जो तुम्हें जीवन देती है। Right? It gives us life. For the words that I speak, Jesus is saying, they are spirit and they are life. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो शब्द मैं पुकारता हूँ, जो शब्द मैं बोलता हूँ, वो आत्मा है और वो जीवन है। So today with this, we are verse 52 onwards. We'll read onwards verse 48 onwards actually. What Jesus said, I am that bread of life. जीवन की रोटी मैं हूँ। So I have divided into three. The bread that gives eternal life. और इसको मैंने जो है 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहली बात कि वो रोटी जो अनंत जीवन देती है, Then we'll see the words that give spiritual life. और उसके बाद हम देखेंगे कि जो वो शब्द जो आत्मिक जीवन देता है, Then we'll see the choice that reveals the heart.
और उसके बाद तीसरी बात हम देखेंगे कि वह चुनाव जो हृदय को प्रकट करता है। So the first thing we'll see, and before that we'll pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to have this verse by verse Bible study. I pray that you lead us and guide us with your Holy Spirit. I pray that you open the hearts so that we may understand your words, O Lord, because thou hast the words of eternal life. And I pray that as we come before you, help us, O Lord, to meditate on your word, to receive your words, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. So verse 48 says, I am that bread of life. और वचन 48 में कहा गया है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। This is the third time Jesus is identifying himself as I am the bread of life. और ये तीसरी बार यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह यहाँ पर कहते कि मैं जीवन की You रोटी know हूँ। what bread does? Bread, when you eat physical bread, it sustains our life. और क्या आपको पता है कि जो रोटी है वो क्या करती है? तो जब रोटी जो शारीरिक रोटी है जब हम खाते हैं तो वो हमारे जीवन को आगे चलाती है। But Jesus is not talking about that physical bread. पर यीशु जो है यहाँ पर वो शारीरिक रोटी के विषय में बात नहीं कर रहा है। He is talking about he himself is the bread, the spiritual bread that you can get eternal life. और वो जो है वो आत्मिक रोटी के विषय में बात कर रहा है, जो खुद वो आत्मिक रोटी है जो जीवन देती है उसके विषय See में। how he is telling them, but they are not understanding. Verse 48. और वो इस प्रकार से उन्हें बता रहा है पर वो उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। I am that bread of life, he is saying, verse 48. मैं जीवन की रोटी हूँ। Now he talks the physical bread. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। Verse 50. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. यह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। That is the different bread. He himself is the bread he is talking. और जो प्रभु यीशु मसीह खुद वो रोटी है वो बता रहा है। Clearly says, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, and which I will give for the life of the world. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। What he is saying, I am the living bread. और वो कहता है कि मैं वो जीवित रोटी हूँ। Moses gave you bread, मूसा ने आपको वो रोटी दिया, but your fathers are dead, he is saying. पर आपके बाप दादों ने उसे खाया और वो मर गए। If you eat what I am giving, पर अगर आप वो खाते हो जो मैं आपको देता हूँ, that will sustain will give you eternal life. तो वो आपको अनंत जीवन देता है। And verse 51 tells you three truths. और वचन 51 जो है वो 3 सच की बातों को हमें दिखाता है। First, he talks about the living bread. सबसे पहले कि वो जीवन की रोटी के विषय में बात करता है। Right, I am the living bread. मैं जीवन की रोटी हूँ। Then he says that bread came from heaven. और वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। This bread is not earthly. और वो जो है वो सांसारिक रोटी नहीं है। This earth is not by human. This bread is not earned by any human works. और वो जो रोटी है वो किसी मनुष्य के भले कामों के द्वारा वो प्राप्त This नहीं होती। bread is not earned by a church membership. और ये जो रोटी है वो कलीसिया के सभासद के द्वारा प्राप्त नहीं Or होती, doing any rituals. और किसी परंपरा और रूढ़ी के द्वारा वो प्राप्त But नहीं bread होती। from heaven is पर Christ वो himself. पर वो रोटी जो है वो स्वर्ग से उतरी है और खुद वो यीशु मसीह है। And then the third truth is that the bread given for the world. और तीसरी बात जो वो है कि वो रोटी जो जगत के जीवन के लिए दी He है, says the bread that I will give is my flesh, और वो रोटी जो है वो मेरा मांस है, which I will give for the life of the world. क्योंकि और वो कहता है कि वो रोटी मैं वो जगत के जीवन के लिए देता हूँ। What it's pointing out, directly pointing out to Calvary. और वो जो है वो सीधे तौर पर कैलवरी के विषय में बताता The है। flesh would be sacrificed, Jesus Christ's flesh. और वो जो प्रभु यीशु मसीह का जो वो शरीर है वो वहां पर उसका त्याग हुआ है, Right, the body was broken. और उसका जो शरीर है वो तोड़ा गया है। Right, not his bones. उसके हड्डी नहीं परंतु उसका शरीर तोड़ा गया And है, his death gives us this precious life. और उसके जो मृत्यु है वो एक अनमोल जीवन को हमें देती So है। now the Jews are getting more confusion. और अभी जो इजरायली लोग हैं वो जो उनके बीच में और गैर समझ आता है। From starting onwards in chapter 6, हम chapter वचन 6 entirely discuss the bread of life. और अध्याय 6 से शुरुआत से लेकर अभी तक हमने देखा कि वो जीवन की रोटी के विषय। But now onwards, if you will study verse 52 onwards, पर अगर हम इसके आगे की ओर देखते हैं, वचन 52 के आगे की ओर, these verses are used ये जो वचन है वो इसका उपयोग होता है to support the doctrine of transubstantiation.
ट्रांसब्स्टेंशिएशन की शिक्षा के लिए सपोर्ट करने के लिए इस वचन का उपयोग होता है। If you go to any Roman Catholic church, अगर हम किसी रोमन कैथोलिक कलीसिया में जाते हैं what they say, you have every Sunday you have to take the mass. तो वो इस प्रकार से कहते हैं कि हर इतवार को जो है आपको प्रभु भोज लेना होता है। And that they call when but the priest stands in front of everyone. और जब वो प्रीस्ट सबों के सामने में खड़े होते He हैं takes the bread and the wine, और वो रोटी को लेते हैं और उस दाखरस को लेते हैं and he says some magical words, and what happened? The literal, the physical bread and wine turn into the body of Jesus Christ and the blood of Jesus Christ. और वो ये कुछ जादुई शब्दों का प्रयोग वो करते हैं और उनके हाथ में की जो रोटी और दाखरस है वो प्रभु यीशु मसीह के मांस में और उनके लहू में बदल जाता है। They think that now the body and blood are came into this bread and wine. और वो इस प्रकार से कहते हैं कि अभी जो है प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू जो है वो इसके अंदर आया है And when you eat it, you will have that life. और जब आप उसे खाते हो तो आपके पास वो जीवन होता है। But if you think about this interpretation अगर आप इस सोच के विषय में, इस समझ के विषय में अगर सोचते and हैं you study the scriptures, और अगर आप वचनों का अध्ययन करते हैं you will understand clearly that they are made this doctrine out of their own private interpretation. तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि ये जो उनके जो समझ है कि वो उनकी खुद की है, Right. वचनों By के their बाहर own की private interpretation. और उनकी खुद की वो समझ है। Yes, now see, we'll on because these verses they claim and support their claim. और वो इन वचनों का सपोर्ट लेकर उन बातों को क्लेम करते हैं। Right? They think the communion will give you eternal life. और वो इस प्रकार से बोलते हैं कि जो प्रभु भोज है वो आपको अनंत जीवन They देता है। think the sacramental, what you say, means if you perform these sacraments, और जब हम इस परंपरा है। त्याग को और इस परंपरा को जब हम चलाते हैं if you take part in that, and then you will have salvation. और उसमें अगर आप सहभागी होते हो तो आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हो। Clearly we will see that Jesus is not telling that you should eat my body and my blood. परंतु यहाँ पर वचन में अगर हम देखते हैं कि वो इस सीधे तौर पर इस प्रकार से नहीं कहता कि आपको मेरा शरीर और मेरे लहू को पीना है। Jesus is talking figuratively. और यीशु जो है वहाँ पर एक अंकों के रूप में वहाँ पर बता रहा है। Figuratively, no, figuratively क्या माने? Means don't take it literally. What is saying? उसको Spiritual application. उसको जो है वो आत्मिक रीति से बोला गया है। Right. Whenever we will, there are three applications when you study the Bible. और जब कभी भी हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो तीन प्रकार के एप्लीकेशन हमें करना चाहिए। Historical, doctrinal, and spiritual. एक ऐतिहासिक, एक शिक्षा के तौर पे और एक आत्मिक तौर पे। Right. If you want to take the literal application, और अगर आप चाहते हैं कि उसका एक लिटरल एप्लीकेशन अगर हम ले, Bible will tell you so. तो वचन भी उस प्रकार से उसके विषय में हमें बताता है। Bible will tell you take it literal as it is. तो बाइबल हमें बताता है कि जो वचन जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से हमें लेना है। But if you want to take spiritual, अगर Bible will say to take means you should apply it spiritually. अगर आप उसको आत्मिक रीति से लेना चाहते हो तो वचन आपको बताएगा कि उस बात को आत्मिक रीति से So लेना we'll है। understand what I am trying to say. Verse 52. The Jews therefore strove among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। Now the next 53 Jesus will say, the saying will much more confuse them. See, yeah? And then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। Whoso, 54, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। So these are the verses they use to support their doctrine. और ये जो वचन है वो उन शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए When you उपयोग only करते हैं। take these verses and you think like that, और जब आप केवल इन वचनों को लेते हो और उसके विषय में इस प्रकार से सोचते you हो, will also think Jesus is telling you you should eat my body and my blood. और हम अगर इस प्रकार से सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको मेरा मांस खाना है और मेरा लहू पीना है, But we'll see that in the entire Bible, पर हम देखते हैं कि पूरे पवित्र शास्त्र में cannibalism. कैनिबलिज्म, What is cannibalism? कैनिबलिज्म क्या है? Eating flesh. शरीरों को खाना, शरीर को खाना, Human मांस को flesh. खाना,
मानवीय शरीर को खाना, That is forbidden in the Bible. और वो जो है वो वचन में वो पाप पाप के समान है। God has condemned that. God और has परमेश्वर told that not to do this. और परमेश्वर उसकी निंदा करता है, और परमेश्वर ने कहा है कि उसे नहीं करना है। But there are some references in the Bible पर बाइबल में ऐसे कुछ रेफरेंसेस है where God, under His judgment, कि परमेश्वर उसके न्याय के तले, has passed judgment, और उसने उस न्याय को पास किया है, divine judgment, and they will do such things. और वो इन बातों को करेंगे। Means, if you see the cannibalism in the Bible, is a wrong thing. और अगर हम कैनिबलिज्म के विषय में अगर पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो वो एक गलत बात है। Right? How can then Jesus is promoting cannibalism? तो इस क्यों जो है यीशु मसीह कैनिबलिज्म को यहाँ पर प्रमोट So करेंगे? He is not promoting, तो वो यहाँ पर उस बात को प्रोत्साहन नहीं दे रहा but है, they are thinking the private interpretation of these people are wrong. पर उन लोगों का जो है वो खुद के जो विचार है, खुद की जो उसके We'll see. पीछे में समझ है वो गलत है। We'll see what Jesus wants to say. Leviticus chapter 26. लैव व्यवस्था उसका 26वां अध्याय, Book of Leviticus chapter 26 and verse 29. Now God is talking what they will do in future. See, if you take from verse 14 onwards, you will understand how God is speaking to them. Right, verse 29, and ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat. और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। Right, that is fulfilled in, if you go to first one more verse, if you go to Deuteronomy chapter 28. व्यवस्था विवरण 28। Book of Deuteronomy chapter 28 and verse 53. 28:53. And thou shalt eat the fruit of thine own body, the flesh of thy sons and of thy daughters, which the Lord thy God hath given thee, in the siege and in the straitness, wherewith thine enemies shall distress thee. तब घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने नीच जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। When you are being captured, Israel, the God is saying, और जब इजरायली लोग जो है वो जब पकड़वाए जाएंगे तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, right, you will be such in your condition that you will start eating your own body, the flesh of thine sons and daughters. कि आप पर ऐसी परिस्थिति आएगी और आप ऐसी परिस्थिति में होंगे कि आप अपने खुद के बेटे और बेटियों का मांस खाएंगे। 54. So that the man that is tender among you and very delicate, his eye shall and be an evil toward his brother, and toward the wife of his bosom, and toward the remnant of the children which he shall live. और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिया और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा। 55. So that he will not give to any of them of the flesh of his children whom he shall eat, because he hath nothing left in him in the siege and in straitness, wherewith thine enemies shall distress thee in all thy gates. और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि घिर जाने और उस संकट में जिसमें तेरे शत्रु और सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ न रहेगा। 56. The tender and delicate woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness, her eyes shall be evil toward the husband of her bosom, and toward her son, and toward her daughter. और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पाँव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटी को। Right, these are the prophecies what will happen in future. और ये जो है ये भविष्यवाणियां हैं जो भविष्य में होने वाली है। God tell that if you depart from my words, और वह परमेश्वर यहाँ पर कहता है, अगर आप मेरे वचन से अगर if दूर you भागते don't हो, obey my command, अगर मेरी आज्ञाओं का आप उल्लंघन if करते you हो, don't follow me, अगर आप मेरे पीछे नहीं होते हो, this will happen to you. He तो ये declared जो them है to Israel. तो ये जो है ये आपके साथ होगा, और 50 उसने इजराइल के लिए ये डिक्लेयर किया। 57. And toward the young one that cometh out from between her feet, and toward her children which she shall bear, for she shall eat them for want of all
things secretly in the sage and in the straightness, wherewith thine enemies shall distress thee in thy gates. अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिपकी खाएगी। Right? And that is happened in Second Kings. If you open Second Kings, book of दूसरे Second राजाओं Kings, chapter 6. Means everything in the Bible is very clear. पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी बातें हैं वो सीधी और सरल है, You need to be an obedient student and study the Word of God. और आपको जो है परमेश्वर के वचन का जो अध्ययन करने के लिए एक आज्ञाकारी विद्यार्थी बनने की जरूरत See है। what happened here. Second Kings chapter, you read entire this chapter, you will understand. But Second Kings chapter 6 and verse 28. And the king said unto her, What allayed thee? And she answered, This woman said unto me, Give thy son, that we may eat him today, and that we will eat my son tomorrow. फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। So we boiled my son and did eat him. And I said unto her on the next day, Give thy son, so that we may eat him. And she had hid her son. और तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। So what was the king was very happy with this? क्या वो राजा इससे बहुत आनंदित था? When you think and when you read this, are you happy with this? जब आप सोचेंगे और जब इस वचनों को आप पढ़ेंगे, क्या आप आनंदित होंगे? God condemned this. परमेश्वर इसकी निंदा करता है। See what the king did, verse 30, and it came to pass when the king heard the words of the woman, that he rent his clothes, and he passed by upon the wall, and the people looked, and behold, he had sackcloth within upon his flesh. और उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। जब लोगों ने देखा तब उनको ये देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। So when Jesus is saying that you eat my flesh and my blood, और जब यीशु यहाँ पर कह रहा है कि आप मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो, he is not telling that you should take it literally. तो वो इस प्रकार से नहीं कहता है कि आप उसमें उसको एक लिटरल तौर पर लो। Right? Jesus will never promote what God is condemning. और प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसी बातों को कभी भी प्रोत्साहन नहीं देता है जिन बातों की परमेश्वर निंदा करता है। Right? So I talked about the body. Then I will talk about drinking the blood. और हमने मांस के विषय में बात किया और अभी हम जो है लहू के पीने के विषय में बात करेंगे। Genesis chapter 9 verse 4. Here is also it is said that you should not drink any blood. Genesis 9:4. उत्पत्ति 9:4। Read 9:4. पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। Yes, the flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। Leviticus chapter 17 and verse 10. Leviticus 17:10. लय व्यवस्था 17:10। And whatsoever man there be of the house of Israel or of the stranger that sojourneth among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and I will cut him off from among his people. मैं फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। 11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh atonement for the soul. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया है, तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। 12. Therefore I say unto you, the children of Israel, no soul of you shall eat blood, neither any stranger that sojourneth among you eat blood. इस कारण मैं इजरायलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह कभी भी लहू कभी न खाए। So if you read on and on, God is telling that you should not
drink any blood means eating the blood. अगर आप आगे की ओर पढ़ेंगे तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि आप कभी भी लहू को नहीं पीना चाहिए। So if Jesus meant literal drinking his blood, और तो कैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसके लहू को पीने के विषय में बताते he हैं, is contradicting the scriptures. और वो जो है वो वचन के विरुद्ध में जाता है, Jesus will never do this. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कभी नहीं करेंगे। Means you have to take a spiritual application. और इसका अर्थ है कि उसको जो है वो आत्मिक अर्थ के रूप में हमें लेना है। And Jesus is not establishing communion here. और प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर प्रभु भोज तैयार नहीं कर रहे हैं। When he was having the communion with his disciples, और जब उसके चेलों के साथ वो प्रभु भोज लेता है, right, he told that this is, means he gave them the physical things. और वो जो है तब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक बातों को उनके चेलों को वो खाने के लिए देता है। Right, means he gave the bread and the fruit of the vine. और वो रोटी को और वो दाखरस को उसके चेलों को वो देता है। Right, not his literal blood and his flesh. और वो खुद का शरीर और खुद के लहू को नहीं, परंतु एक शारीरिक रोटी और दाखरस को वो देता है। So every Sunday you are not, means they think Roman Catholic that every Sunday we crucify Jesus Christ on the cross. तो वो रोमन कैथोलिक लोग जो है वो इस प्रकार से सोचते हैं कि हर इतवार को जो हमें है यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना है। Right, but and then we eat his bread and then we drink his blood. और तब वो उसका मांस खाएंगे और उसका लहू पिएंगे। Why we do communion? और हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं? Because it is a memorial. क्योंकि वो एक उसके स्मरण में हम करते हैं। Right, Jesus Christ died once for all. प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपनी उस सूली पर अपनी जान दी है, Not that every Sunday that he should be sacrificed. और वो हर संडे उसको उस सूली पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। That's why if you go to the church, you will see on the cross there is the body of Jesus Christ. और इसीलिए आप उन कलीसियाओं में जाते हो तो वहां पर एक सूली होती है, क्रॉस होता है, कलवरी होती है, और उस पर यीशु मसीह टंगा होता है। But the cross should be empty. He is risen again. परंतु वो जो क्रूस है वो खाली होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। Right? If you go to Hebrews chapter 10 verse 10, what the Bible says? Hebrews 10:10. That Jesus Christ sacrificed once for all. Hebrews chapter 10 verse 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. 10:10. इब्रानियों 10:10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही बार चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। something is missing there. है क्या? All. ऑल, Once for all. एक ही बार, एक ही बार, like this is missing. Okay. Once for all, he is not that every Sunday that you are sacrificing him. एक ही बार उसका बलिदान चढ़ाया गया है। Right, that means, so what was Jesus telling here? और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहा है? Jesus is using different illustrations. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो अलग अलग उदाहरणों को वहाँ पर वो See, दे रहा in है। John chapter 3, यूहन्ना उसके 3 अध्याय what में he told to Nicodemus, he should be born again. निकोदेमस को उसने क्या कहा कि उसने नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। Did Nicodemus understand? और निकोदेमस ने उस बात को समझा? No, we have said, he said, how can I go to my mother's womb and be born again? और उसने Like उस this बात he को was नहीं thinking. समझा, और उसने कहा कि मैं कैसे मेरे माँ के घर में फिर से जाऊंगा और फिर से जन्म He लूंगा। was thinking physically, और वो जो है वो शारीरिक रीति से but सोच रहा Jesus था। was telling him spiritual thing. परंतु प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आत्मिक रीति से उसे बता रहे थे। Right? Born of flesh is flesh and spirit is spirit. He gave the clear example. और उसने Flesh is flesh and spirit is spirit. Born of spirit, flesh is शरीर से जन्म लेना और आत्मा से जन्म लेना अलग है। right. So he told like your first birth is born of flesh, born of water. और आपका जो पहला जो जन्म होता है वो शारीरिक जन्म होता है, वो And पानी के the द्वारा जन्म second होता birth है, is a spiritual birth. और जो दूसरा जन्म होता है वो आत्मिक जन्म So होता he है। is using this in John chapter 4. He talked to the woman, a Samaritan woman. और यूहन्ना उसके 4 अध्याय में उसने वो सामरी स्त्री से भी वो बात करता What he है। told, drink the living water. तो वो उसे क्या कहता है कि ये जीवित पानी पी जा। Right? What she thought? और उसने क्या सोचा? She sought the physical water. और उसने शारीरिक पानी के विषय में सोचा। Give me that I will never thirst. He is. और उसने कहा कि मुझे पानी दो कि मैं फिर से कभी प्यासी न होने But पाऊं। he told that I am the living water. पर उसने कहा कि मैं वो जीवित पानी And here John chapter 6, you see he is now giving the different illustration, bread of life. और यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसने दूसरी ओर से उदाहरण दिया कि जीवन की रोटी के विषय में। So he has given different examples, तो उसने अलग अलग उदाहरण दिए, physical examples. जो शारीरिक उदाहरण है, Those are different pictures, जो अलग अलग चित्र है, but they tell the same thing, salvation, पर वो जो है वो एक ही बात की ओर इशारा करते हैं और वो है उद्धार, faith. विश्वास। We should
believe what Jesus is saying. आपको जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं उस पर विश्वास करने की जरूरत Believe है। that He is the living water. उस पर विश्वास करें कि वो जीवित पानी है, Believe that He means by Him only you can get born again. और हम विश्वास करें कि उसके केवल उसके ही द्वारा हमारा नए सिरे से हम जन्म ले सकते हैं, Believe that He is the bread of life. और उस पर विश्वास करें कि वो जीवन की रोटी है। So by this He is telling them with different examples. और इन अलग अलग उदाहरण के द्वारा वो इस बात को बताता है। So John wrote this book of John और यूहन्ना ने इस यूहन्ना की पुस्तक को लिखा in such a way और इस प्रकार से लिखा, that it tells that Jesus is God और वो इस प्रकार से लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है and He is everything. और वो सब कुछ है। He is the living water. He is bread of life. वो जीवित पानी है, वो जीवन की रोटी है, He is the door. He is the way. In वो the दरवाजा entire है, वो John रास्ता book, है। he clearly portrays Jesus और Christ as God. और पूरे यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को एक परमेश्वर के तौर पर दिखाता है। Now see verse 56, 55. For my flesh is meat, indeed. See that word, indeed. It doesn't mean literally, right? The word indeed demands that you should take not literal application. और ये जो वास्तव शब्द है, जो इंडीड शब्द है, उसका अर्थ यह है कि उसे हमें वास्तविक रूप में नहीं लेना है। Right? My blood is drink indeed. मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। If you go, how you will understand Romans chapter 6. रोमियो उसका 6वां अध्याय। You will understand. It means every word is important in the Bible. पवित्र शास्त्र का हर एक शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। Now see, verse chapter 6, Romans chapter 6, verse 11. Verse 10 I will read. For in that he died unto sin once. But in that he liveth unto God. क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। See, likewise reckon ye yourselves to be dead indeed unto sin, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। What is indeed meaning here? यहाँ पर इंडीड शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? You should reckon yourselves dead to sin. Indeed, reckon yourself dead to sin. और इस बात को यहाँ पर इस प्रकार से है कि अपने आप को पाप के लिए मारना चाहिए, पाप के लिए मरा हुआ समझो. पाप के लिए मरा हुआ You समझो। should think that you means you are dead to sin, और हमने इस प्रकार से सोचना है कि हम पाप के लिए मर गए हैं, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. परंतु परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जीवित हैं। Why we came here? For that word indeed. वो हम इस यहाँ पर क्यों आए? वो उस वास्तव शब्द के That indeed word is telling that you should take figuratively. Indeed, I am dead unto sin. और इंडीड वास्तव में मैं पाप के लिए मरा हूँ। Not that physical you are dead. This talking मैं about. शारीरिक तौर से मैं मरा नहीं हूँ, परंतु वास्तविक रूप से मैं पाप के लिए Same मरा way हूँ। Jesus is saying now 55. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु He है। that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. और जो मेरा मांस खाता है, वो मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। So how can it be if you apply this physically? How can it this possible? तो अगर आप शारीरिक रीति से इसे अप्लाई करते हो तो ये किस प्रकार से संभव है? Dwelleth in me. वो मुझ में स्थिर है। You are eating me. How are you in him then? और अगर आप उसे खाते हो तो किस प्रकार से वो आपके अंदर होता Now है? see the comparison, verse 57. As the living Father hath sent me, and I live by the Father. So, see that as and so he that eateth me, even he shall live by me. जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। What is Jesus saying in 57? As the living Father hath sent me, and I live by the Father. जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। How he is living? By eating Father? नो, Right? He is saying by obedience to the Father, by being under him. और वो पिता के कारण जीवित है और वो पिता को खाने के द्वारा नहीं, परंतु पिता की और आज्ञाकारिता के द्वारा By वो जीवित complete है। obedience and dependence to the Father. वो पूरी तरह से वो आज्ञाकारी है और पूरी तरह से परमेश्वर पिता पर निर्भर है। So he that eateth me, even he shall live by me. वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। So that is obviously Jesus is not telling that I am eating my Father. वो इस प्रकार And से I live by him.
right? और वास्तविक रीति से वो इस प्रकार से नहीं बोलता है कि मैं पिता को खाता हूँ। Verse 58, this is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna and are dead. He that eateth this bread shall live forever. और जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। Again, he compared the manna with himself. और फिर से जो है वो मन्ना और वो खुद की वहां पर वो तुलना करते हुए दिखाई देता है। 59, these things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. और ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश करते समय So बोली। Jesus taught these things openly and publicly. और यीशु ने ये जो बातें हैं ये सीधी तौर पर और उस आराधनालय में खुली तौर पर He बताई openly declared them that he is the Messiah. और खुली तौर पर उसने ये वहां पर इस बात का डिक्लेयर किया कि वो मसीहा है। The problem is of them receiving what he was. और समस्या वो थी कि उन लोगों में वो समस्या थी कि वो उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे थे Right? They were not accepting him. और वो उसका स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। Imagine if the boat is sinking, और आप सोच सकते हैं कि अगर कोई जहाज है वो डूब रहा है, right? The sinking boat. जो डूबता हुआ जहाज है, And what the captain does of the boat, और जो जहाज का जो कैप्टन होता है वो क्या करता he है, throws everyone the life what you say life jacket. और वो जो जीवन बचाने वाला जो जैकेट होता है उसे वो हर एक को देता है। Instead of what you should do, your response, the boat is sinking, you should put on that jacket and you save yourself. और हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि जहाज जो डूब रही है, जो जैकेट वो दे रहे हैं उसे हमें पहनना चाहिए। But what instead people are discussing what quality of boat it is and so. और अगर लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि उस जैकेट के गुणों के विषय में और वो किस प्रकार का है, Yeah, means they are discussing the boat is sinking and they are discussing that this boat is not good, that the engineering is not good, instead of wearing the jacket. और वो जहाज जो डूबता हुआ है वहां पर जो लोग हैं वो डूबते हुए जहाज को देखकर भी वो अगर इन बात के विषय में कुड़कुड़ाते हैं कि जहाज ठीक नहीं है और जहाज का इंजीनियरिंग और उसकी रचना ठीक नहीं है, They और are वो जैकेट arguing पहनने की about वजह, it. They are arguing about how the boat is built. और वो जहाज के निर्माण के विषय में अगर वो वाद विवाद करते हैं, They should take the life jacket and save themselves. और उन्होंने उस सबसे पहले जो है उस जैकेट को पहनना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। So Jesus Christ is not just the topic of discussion among you. और प्रभु यीशु मसीह जो है ये सिर्फ अपने आप में और एक दूसरे से सिर्फ वाद विवाद करने का विषय नहीं है, He must be received. और उसका जो है वो उसको स्वीकार करना चाहिए। This world is sinking. और ये जो संसार है वो डूब रहा It's है going to hell. और वो जो है वो नरक की ओर जा रहा है, Broad is the way that leadeth to hell. और वो जो नरक की ओर जो रास्ता जाता है वो रुंद है, अरुंद That's है। why you should receiving is important. That और- people had problem with receiving. और इसीलिए उसका स्वीकार करना जरूरी है और लोगों को उसको स्वीकार करने में समस्या है। Right in Numbers chapter 21, you know that serpent was lifted up. और हम There was a poisonous snake in Israel. और इजराइल में हम देखते हैं कि एक विषारी सांप होता है, And many of Israel got bitten by the poisonous snake. और बहुत से इजरायली लोगों को उस विषारी सांप ने काटा होता है। What God told, God didn't told work hard, और परमेश्वर ने इस प्रकार से नहीं कहा कि आप मेहनत करो, offer sacrifices, कि आपका बलिदान को चढ़ाओ, join this Israel religion, जो इजराइल जो धर्म है उसको आप ज्वाइन करो, then you will get away from that poison which the snake brought. तो आप वो जो विषारी सांप का जो विष है उससे आप दूर हो जाओगे। He simply told the look at that brazen serpent. और तो उसने सीधे तौर पे कहा कि जो ऊपर उठाने वाला वो जो सांप है उसकी ओर देखो। Right, means the Moses lifted up that rod and what do you call that serpent? मूसा ने उस लाठी को ऊपर उठाया उस पर, और उस पर वो सांप चढ़ गया। When Israel just saw that, they were healed. और जब इजरायली लोगों ने उसे देखा तो वो चंगे हो गए। The simple thing God told them that look, और एक सीधी और सरल बात परमेश्वर ने उन्हें बताई कि उसकी ओर देखो। that looking was believing. वो जो विश्वास, उसकी तरफ जो देखना है वो विश्वास है। So Jesus is telling, just receive me, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ आप मेरा स्वीकार करो receiving him by faith. और उसके विश्वास के द्वारा उसका स्वीकार करो। So that's why Jesus, the first point, the bread that gives you eternal life. और सबसे पहली बात हमने देखी कि वो रोटी जो अनंत जीवन देती है, He is not talking literal bread, सॉरी, वो जो है वो एक लिटरल रोटी के विषय में वो बात नहीं कर रहा है, but the spiritual bread, the eternal life which he himself is going to offer. परंतु एक आत्मिक रोटी के विषय में जो खुद वो रोटी है जो अनंत जीवन देती है उसके विषय में वो The बात next कर thing रहा we'll है। see the words that give spiritual life. और उसके बाद दूसरी बात हम देखने वाले हैं जो है कि वो शब्द जो आत्मिक जीवन देते हैं। Verse 60. Many therefore of his disciples, when they heard this, said, "This is an hard saying. Who can hear it?" और उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। What they saying? Hard saying. ये कठोर बात है।
The problem was not the hard doesn't mean that it is difficult to understand. और ये बात उसका जो हृदय है वो इस No, no, प्रकार no. से Hard और doesn't mean that it is difficult to ये understand. कठोर बात इस प्रकार की नहीं है कि वो समझने में बहुत तकलीफ है, It is difficult to accept. वो ये कठिन है उनको स्वीकार करने के लिए They वो कठिन है। refuse to believe. और वो जो है वो उस पर विश्वास करने को वो अस्वीकार करते They हैं, are murmuring around themselves. और वो जो है वो खुद में और आपस में वो कुड़कुड़ाते हैं। Jesus said, verse 61, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, do this offend you? यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? When Jesus was spake all these things, even his disciples murmured at it. और जब यीशु मसीह ने इन सब बातों को कहा और उसने देखा कि उसके जो खुद के चेले हैं वो भी आपस में कुड़कुड़ा रहे थे, Imagine how lonely Jesus Christ might be feeling at that time. और आप सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार से एक लोनलीनेस और एक एकांत को वो महसूस कर रहा होगा। He is speaking clearly, but they are not understanding what is. और उसने सीधे तौर सरल तौर पे इन सब बातों को कहा, बट वो कोई भी वहां पर जो है उस बात को समझ नहीं पा रहा था। He had much crowd and following, और उसके पास बहुत सी भीड़ लगी थी और बहुत से लोग उसके पीछे हो रहे थे, but spiritually he was lonely. पर वो आत्मिक रीति से वो एकांत में था। Right? Verse 62. What, and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? He Ye- questioned them. यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? Why he is selling 62? 62 he is saying, what if you see me ascend back to heaven? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे। What Jesus is telling, you are not understanding these simple words. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि इस सीधे और सरल शब्दों को आप समझ नहीं पा रहे हो। What if I go up to heaven? How you will believe that? तो अगर मैं ऊपर की ओर मुझे जाते आप देखोगे तो किस प्रकार से आप विश्वास He करोगे? came, he talked, I came from heaven, right? Bread from heaven, right? He said many times, repeated. और उसने कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और वो जो रोटी है वो स्वर्ग से उतरी है। That's why means if they are not believing this, they will not able to handle resurrection and his ascension. तो अगर वो इन बातों पर इस सीधी सरल बातों पर विश्वास नहीं करते तो वो पुनरुत्थान की बातों पर कैसे विश्वास Now he करें? clearly explains what he is saying. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। By eating flesh, you will not get saved. और मांस को खाने के द्वारा आपका बचाव नहीं होता है। The spirit and the words that I speak, they are the spirit and they are life. जो आत्मा और जो शब्द मैं बोलता हूँ वो जीवन है और वो आत्मा है। Again, 64. But there are some of you that believe not. परंतु For तुम में Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray him. परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले इसे जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। How does faith come? और किस प्रकार से विश्वास आता है? Faith cometh by hearing, and hearing the words of God. विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। Right? He is told the flesh profiteth nothing. The words that I speak, they are spirit and they are life. और उसने कहा कि जो शब्द है, जो शरीर है वो लाभदायक नहीं है, परंतु जो शब्द मैं बोलता हूँ वो जीवन है और वो आत्मा है। 65. He said, therefore said I unto you that no man can come to me except it were given unto him of my Father. और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। Well, last time we have seen how the Father draws that person so that he gets saved. पिछले समय में हमने देखा कि किस प्रकार से पिता जो है वो उसकी ओर उसे व्यक्ति को खींचता है कि उसका उद्धार होने के लिए। Right? How Father draws that person? और किस प्रकार से जो है परमेश्वर पिता उस व्यक्ति को खींचता है? When that person is taught of God. और जब वो व्यक्ति परमेश्वर के विषय में उसे शिक्षा दी जाती है, He hath heard. और जब वो शिक्षा को सुनता है, He had learned. और जब वो शिक्षा के द्वारा वो सीखता है, Then he gets saved. और उसके बाद जो है उसका उद्धार होता है। That is how Father draws. और इसी प्रकार से जो है पिता खींचता है। Not by his will and just what the Calvinism teaches. परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार नहीं, और कैल्विनिज्म में जो बातें वो बताते उस प्रकार नहीं। 66. And from that time many of his disciples went back and walked no more with him. और इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। Right? 666.
John chapter 6 verse 66. 666. What is that? हाँ? Translate करके। एंटीक्राइस्ट हाँ तो ट्रांसलेट करके। जो यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और 66वां वचन हमने देखा, तो यहाँ पर 666 होता है। तो 666 का अर्थ क्या है? That is Antichrist. और वो जो है वो शैतान That है, is number of beast. और ये जो है शैतान का नंबर है। And what happened in this verse? और इस वचन में क्या होता है? From that time, many of his disciples went back और and इस walked no more with him. और इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। This number, whenever comes, it shows that it is against the Christ. और ये नंबर, ये अंक जब भी आता है तो ये बताता है कि वो मसीह के विरोध में है। So they were just outward disciples, you can say. और वो जो है वो सिर्फ बाहरी तौर पे वो चेले थे, Right? They were followers. वो उसके पीछे चलने वाले थे। It doesn't mean that you means there are followers. और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसके पीछे हो नहीं लिए थे, They were followers. और वो उसके पीछे हो लिए थे। No. There were followers. Jesus Christ had followers, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग वहां पर थे, but they were not believers. पर वो विश्वास करने वाले लोग नहीं थे, They were just outwardly. वो सिर्फ जो है बाहरी तौर पर लोग थे। So by just showing outward following to Jesus Christ, सिर्फ बाहरी तौर पर यीशु मसीह के पीछे चलना ये दिखाने के it द्वारा will not save you. तो वो आपको नहीं बचा सकता। So Jesus told they left, disciples left. और चेले जो है उसको छोड़कर वहां से मुड़ गए और वो वापस चले गए। 67. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? So before going that, a doctor may give you a medicine. उसकी आगे बढ़ने के पहले हम देखते हैं कि एक वैद्य जो है वो आपको कुछ दवाइयों को दे सकता है To get you better, आपको ठीक होने के लिए। but the patient refused that medicine. पर अगर वो जो पेशेंट है वो अगर उन दवाई को नहीं लेता है, रिफ्यूज करता है, He said that I don't like the taste. तो वो इस प्रकार से कहता है कि मैं उसकी जो टेस्ट है उसको नहीं चाहता, I don't like how it looks and how it is packed. And वो किस everything. प्रकार से वो दवाइयाँ है और किस प्रकार से उनकी टेस्ट है, मैं उसे नहीं चाहता। The problem is not in medicine. वो जो दवाई है उसमें वो समस्या नहीं The है, problem is the refusal. वो जो समस्या है वो जो उसका अस्वीकार करने में है। Many reject Christ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का अस्वीकार करते हैं, not because they don't understand the message and all, वो इसलिए नहीं कि वो जो वचन है और जो वहाँ पर प्रचार जो मैसेज है उसको समझ नहीं they पाते, have a problem in believing in Him. परंतु उनको समस्या है उस पर विश्वास रखने में। Jesus is not the problem. और प्रभु यीशु मसीह वो समस्या नहीं है। They say in John 6 verse 60, they say hard saying. This is a hard saying. और वो 60 में वचन 60 में कहा गया है कि ये कठोर बात है। If you take any clay अगर आप एक मट्टी को लेते हो and if you take a wax, और एक वैक्स को लेते हो, what the sun can do? तो जो सूरज है वो क्या कर सकता है? It can harden the clay. और वो मट्टी को वो मजबूत कर सकता है। And what about the wax? और वो Soft. और वो वैक्स को वो क्या कर सकता है? उसको मुलायम कर सकता है। The problem is not the sun. और ये जो सूरज है वो समस्या नहीं The है, problem is the material. परंतु जो समस्या है वो उस वस्तु में है। Some heart melts and some hearts doesn't melt. जो कोई कठिन है वो मुलायम होते हैं और जो कठिन है वो मुलायम नहीं होते। So when God words come, और जब परमेश्वर का वचन आता है, it reveals, the next point reveals the choice that reveals the heart. और वो चुनाव होता है जो हृदय को प्रकट करता है। So Jesus clearly told everything. और प्रभु यीशु मसीह सीधे सरल तौर पर यहाँ पर इन बातों को बताते हैं। Many of his disciples went back. और उसके बहुत से चेले जो है वहां पर पीछे मुड़ गए। Right, then the 67. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 3 things happen. 3 बातें होती है, Believe, विश्वास करना, reject, और अविश्वास करना, or betray. और उसको धोखा देना। That means many left him. कि बहुत से उसको छोड़कर चले गए। The disciples, what the Simon Peter answered? Then Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास Simon है। Peter didn't say, to where shall we go? शमौन पतरस ने इस प्रकार नहीं कहा कि हम कहाँ जाए, He knew that salvation is in the person, not in a place or not in works. क्योंकि शमौन पतरस को पता था कि वो जो उद्धार है उस व्यक्ति में है, वो कहीं किसी जगह में नहीं है परंतु और किसी स्थान में नहीं है। The Lord, to whom shall we go? कि हे प्रभु, हम कहाँ जाए? Just now in 63, Jesus said, the words that I speak unto you, see that words,
I speak unto you, they are spirit and they are life. जो शब्द प्रभु यीशु मसीह कहता है वो आत्मा है और वो जीवन है। That's why Simon said, thou hast the words of eternal life. और इसीलिए शमून पत्रस यहाँ पर कहता है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। 69. And he believed, and we believed, and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। See, what is, we believe and are sure that thou art the Christ. और उन्होंने विश्वास किया और उनको ये निश्चितता मिल गई कि वही मसीहा है। So believe comes first, जो विश्वास करना है वो सबसे पहले आता है then the following. और उसके बाद जो है उसके पीछे हो लेना आता है। Then he's talk about the betrayal. Jesus answered them, have not I chosen you 12, and one of you is a devil? और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। Who was that? 71. Yehuda He spake Iscariot. of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा इस्करियोती के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को Jesus था। told them that one of you is devil. और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप में से एक है जो शैतान है। So 69, he clearly talked for everyone. वचन 69 में उसने सीधे सरल तौर पर सबके लिए कहा He said, we believe. कि हम विश्वास करते He हैं। didn't say, I believe. उसने ये नहीं कहा कि मैं विश्वास करता हूँ, परंतु उसने कहा कि हम विश्वास करते हैं। Simon means Peter thought that Judas Iscariot is saved. और शमौन पत्रस इस प्रकार से सोचता है कि जो यहूदा इस्करियोती है उसका उद्धार हुआ है, वो बचाया गया है। Means being near Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के पास होने के बावजूद भी going to church, और कलीसिया में जाने के बावजूद right, भी doing all things which are show as you are follower of Jesus. और सब बातें दिखा करने के द्वारा जो बातों की ओर से हम देखते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो, That doesn't mean you are saved. उसका अर्थ ये नहीं है कि आपका उद्धार हुआ है। Judas preached, और ये जो यहूदा इस्करियोती है वो प्रचार करता था right? He performed miracles. और वो अक्षय कर्म को करता था। He traveled with those 12 and Jesus Christ. वो 12 चेलों के साथ में और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने प्रवास किया, Yet he was never saved. पर उसने ये नहीं कहा। Right? 71. Jesus identifies him that he was Judas Iscariot. और प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहचाना कि वो यहूदा इस्करियोती है। Long before the betrayal, और धोखा देने से पकड़वाने के पहले Jesus already knew. और प्रभु यीशु मसीह पहले से ही जानता He था had the foreknowledge. कि उसको पहले से ये ज्ञान था, But Judas willingly chose this path. परंतु यहूदा इस्करियोती जो है वो खुद से होकर इस बात को चुनता है। Yet Jesus loved him. ये प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम करता है फिर भी, He washed his feet. और वो उसके पैरों को धोता है फिर भी। Right? It tells you how Christ offered him an opportunity to repent. और ये हमें इस बात को बताता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसे ऐसी संधियों को दिया है कि वो अपने अपराधों को कबूल करे, But he chose his own path. पर उसने खुद के मार्ग को चुना। So what it tells? तो वो क्या बताता है That Judas had a free will. कि यहूदा इस्करियोती जो था उसके पास वो फ्री इच्छा थी। Right? 1 Timothy chapter 2. So Jesus Christ died for all. प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए मर गया। Why I am telling you this? मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ? Because nowadays in churches, क्योंकि आज के दिनों में जो अंत के दिन है, 1 Timothy chapter 2, there is a doctrine of Calvinism. कि कैल्विनिज्म की कुछ शिक्षाएं हैं It is destroying believers' spiritual life. और वो जो है जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनके आत्मिक जीवन को वो बर्बाद कर रही They है। think that God has elected you. और वो इस प्रकार से सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, Right? Not that you have selected God, और- but God selected you before the foundation of the world that you will go to hell and you will go to heaven. इस सृष्टि की रचना करने के पहले परमेश्वर ने आपको चुना है और लोगों को चुना है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। But it is clearly against the Bible. They take some verses and परंतु they think that God has elected. ये जो है ये पूरी तरह से पवित्र शास्त्र के खिलाफ में है। 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। So take verse 6. Who gave himself for a ransom for? It doesn't say for elect, for only limited people, for only selected people, for all
to be testified in due time. जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। What is that word? All. सबको. सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। Right? He died for all. वो सबके लिए मारा गया Jesus died even for the person who betrayed him. और वो उस व्यक्ति के लिए भी मारा गया जिसने उसे धोखा दिया। Yet what happened? फिर भी क्या हुआ? He chose his own path. उसने उसके खुद के रास्तों को चुना। Right? There are two roads. हम एक देखते हैं कि दो रास्ते हैं, One to life and one to destruction. एक जो है जीवन की ओर है और एक नाश की ओर है। Right? But what people do? They stand in between. तो लोग क्या करते हैं? वो दोनों के बीच में खड़े रहते They हैं never choose. और वो एक चुनते नहीं है। Jesus asked, "Will ye also go away?" 69, 67. वचन 69 में प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछता है कि क्या आपको भी चले जाना है? Right? He asked to the 12. और उसने उस 12 को पूछा। Spiritually, he might be asking you now. आत्मिक रीति से वो हमें आज भी पूछ रहा होगा, If you are not saved, अगर आप बचाए नहीं गए हैं, you have heard everything. He is the bread of life. He has the eternal life. आपने सब कुछ सुना है कि वो जीवन की रोटी है और वो अनंत जीवन And है, you are in between those two roads. और आप अगर उन दोनों रास्ते के बीच में हो, Jesus is saying, "Will ye also go away?" तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? So what you should do? तो आपको क्या करने की You जरूरत है? should choose one road. तो आपको एक रास्ता चुनने की जरूरत है And that is the way to eternal life is और Jesus Christ. वो रास्ता है कि वो अनंत जीवन का रास्ता है जो You प्रभु know, यीशु मसीह है। Peter and Judas both failed. पतरस और जो यहूदा था वो दोनों भी फेल हुए Right? Peter denied Jesus. और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया And Judas, what he did? He betrayed Jesus. और जुड़ा यहूदा इस्करियोती ने धोखे से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। But thing is, Peter ran back to Jesus. पर जो बात यह है कि पतरस जो है वो फिर से प्रभु यीशु मसीह के And पीछे भागा Judas ran away from Jesus and hung himself. और यहूदा इस्करियोती जो है प्रभु यीशु मसीह के पास से दूर भागा और उसने आत्महत्या कर ली। One found forgiveness and the other was deep in despair. और इस एक जो है उसने उस क्षमा को प्राप्त किया और दूसरा जो है उसने उस दुख को लिया। The problem is not failure. और ये जो समस्या है वो आपके फेल्यूर में नहीं है, Problem is not that you have let God down. और समस्या ये नहीं है कि आपने परमेश्वर को नीचा किया है, Means in your life by the way you live. और जो आपके जीवन में और जिस प्रकार से आप अपना जीवन जीते हो उसके द्वारा आपने परमेश्वर को नीचा The किया है। question is, will you run back to Him? परंतु प्रश्न ये है कि क्या आप फिर से वापस उसकी ओर दौड़ते हो? If you run back to Him, अगर फिर से आप वापस उसकी ओर दौड़ते the हो, third point is it reveals your heart. तो तीसरी बात हमने जो देखी कि ये जो है ये चुनाव है जो आपके हृदय को प्रकट करता है। Right? So Jesus alone satisfies the deepest hunger of a soul. प्रभु यीशु मसीह जो है वो अकेला जो है एक आत्मा की भूख को वो मिटा The सकता है। world offered temporary bread, but Jesus is offering eternal life. ये जो रोटी है ये टेम्पररी है, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनंत काल की रोटी, वो अनंत जीवन देता है। Right? Salvation is received by faith, और ये जो उद्धार है वो विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, not by those rituals and sacraments. हम कुछ वो बलिदानों के द्वारा और कुछ रूढ़ी और परंपरा के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा हम Right? उद्धार प्राप्त करते The communion is for memorial हैं। और ये जो प्रभु भोज है ये सिर्फ उसके स्मरणार्थ है, स्मरण के लिए of है, His finished sacrifice on the cross. He said it is finished. क्योंकि उसने उस त्याग को उस सूली पर वो पूरा किया, क्योंकि उसने वहां पर सूली पर कहा कि पूरा हुआ। People think that eating communion you will have salvation. और लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि प्रभु भोज में सहभागी होने से और प्रभु भोज खाने से हमारा उद्धार होगा। Hey, people don't know when, means if they die today they will go to heaven or hell. और लोग ये इस बात का उन्हें पता नहीं है कि उनका अगर आज मृत्यु होता है तो वो स्वर्ग जाएंगे कि नरक में जाएंगे। Suppose any Catholic died, अगर एक कैथलिक व्यक्ति का मृत्यु होता है, right? If you go and ask, is in heaven or hell? अगर हम जाकर पूछते हैं और कि वो स्वर्ग में होगा या नरक में होगा, They don't have any answer. तो उनके पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। They think, no, last Sunday he took communion. तो वो इस बात को कहेंगे कि पिछले इतवार को उसने प्रभु भोज लिया है। Right? Like this answer, they don't have assurance. वो इस प्रकार से उत्तर देंगे क्योंकि उनके पास एक निश्चित एक एश्योरेंस नहीं है। And what the priest will say? और प्रीस्ट क्या कहेंगे? They have different ways to take that person who is died to heaven. और उनके पास अलग रास्ते हैं, जो व्यक्ति मृत है उसको स्वर्ग में लेकर जाने के You लिए। give money to the church. आप कलीसिया को, आप चर्च के भवन Means के the लिए family पैसों को will दो। pay the church. जो अगर वो परिवार है वो अगर कलीसिया को पैसे को देता है And somehow that person will go to heaven. तो हो सकता है कि वो व्यक्ति स्वर्ग में जाए। Like this roots they do.
और इस प्रकार के रास्तों को वो दिखाते So हैं that is how they have corrupting the Christianity. और इस प्रकार से जो है वो मसीहत को भ्रष्ट कर रहे हैं Right? Flesh profited nothing, Jesus said. क्योंकि जो शरीर है वो कुछ भी लाभदायक नहीं It is है the spirit that produces the words and the spirit and life. परंतु जो आत्मा है जो जीवन और आत्मा को देता है So every person must make a decision. पर इसलिए ये जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जो है उसमें वो निर्णय लेना चाहिए The starting of this John chapter 6, he fed many people, 5,000 people and और more. यूहन्ना उसके 6वें अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसने 5,000 पुरुषों को खिलाया But last chapter, many walked away. परंतु अंतिम समय में हमने देखा कि बहुत से जो है वो पीछे मुड़कर चले What गए did they, why did they went away? वो क्यों पीछे की मुड़कर चले गए They stumbled at the words of eternal life. क्योंकि वो जो है वो अनंत जीवन के जो शब्द है वहां पर वो लड़खड़ाए Right? The words of the living God. जो जीवित शब्द है उसके लिए वो लड़खड़ाए When you read the Bible जब कभी भी आप बाइबल को पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो and you don't understand what you are reading, और जो आप पढ़ते हो आप उसे समझ नहीं पाते हो you know why it is happening? तो क्या आपको पता है ये क्यों होता है The same Jesus, these people say in verse 16, this is a hard saying. क्योंकि ये इसी प्रकार इसीलिए होता है कि वचन 60 में वो कहते हैं कि ये कठोर बात The है problem is not that you are not understanding. The problem is that you are not believing what the Bible says. और Not समस्या ये accepting. नहीं है कि आप उस बात को समझ पा रहे हो परंतु समस्या ये होती है कि आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो But Peter recognized परंतु पत्रस इस बात को जानता था उसने and he recognize said किया। clearly, verse 68, thou hast the words of eternal life. और 68 वचन में शमन पत्रस ने सीधे सरल तौर पर कहा कि हे प्रभु हम किसके पास जाए अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है So with this we have completed chapter 6. और इसके साथ हमने जो है वचन 6 को पूर्ण किया But there are few questions I want to ask. Have you believed the bread of life? परंतु कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपने उस जीवन की रोटी पर विश्वास किया The Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह Have you walked away or have you walked away from the bread of life? क्या आप उस जीवन की रोटी से दूर चल रहे हो Just like these people walked away. जिस प्रकार से ये जो लोग है ये जो चेले हैं वो दूर चले गए Or are you like Judas? क्या आप यहूदा इस्करियोती के समान हो You confess outwardly, you are showing that you are Christian, बाहरी तौर से जो है वो आप मसीह होकर दिखाते हो but never truly trusted him. पर पूर्ण रीति से और सच्चाई से आपने विश्वास नहीं किया हो Simon Peter had an answer. शमौन पतरस के पास वो Jesus asked, उत्तर है will you go away? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे तुम भी चले जाना चाहते हो And Simon said, Lord, to whom shall we go? और शमौन Thou hast the words of eternal life. और शमौन पतरस ने कहा हे प्रभु हम किसके पास जाए क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है Today you have the words of eternal life in your hand. और आज आपके पास जो है अनंत जीवन की बातें जो है जो वचन है वो आपके हाथों में है So are you believing it? क्या आप उस पर विश्वास कर रहे हो Are you walking away from it? क्या उससे आप दूर चल रहे हो Or are you betraying those words? और क्या आप उन शब्दों को उन वचनों को आप धोखा दे रहे हो So we'll stop.